Morning students, in this video we will discuss about how to control the voltage in single phase inverter as well as in three phase inverter. Before we will start, let us discuss about an inverter first. As you know that an inverter is a device that converts DC power into AC power at desired output voltage and frequency. So, to fulfill the requirement of AC load, it is essential that output voltage of the inverter must be controllable. Examples of such requirements are if AC load require a constant input voltage at different level, then if there is any variation in the DC input voltage, it must be compensated in order to maintain a constant voltage at the load ends. Second example, if we want to control an induction motor drive, then the voltage to frequency ratio at the inverter output terminal must be kept constant. Now, there are various methods for the control of output voltage of inverter. First method is external control of AC output voltage. Second method is external control of DC input voltage. And the third, which is very important, that is internal control of an inverter. Now, पहला मेथड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. Now, there are two possible methods of external control of AC output voltage. Again, first one is AC voltage control and second one is series inverter control. Now, in AC voltage control method, we will use an AC voltage controller which is inserted between the output terminal of an inverter and the load terminal. And we get a control AC voltage by controlling a firing angle of AC voltage controller. But this method gives rise to higher harmonic content in the low output voltage. Therefore, this method is rarely employed for low power applications. Now, the second method is series inverter control. In this method, we will use two or more inverter in series as shown in figure. The output voltage of the two inverter can be summed up with the help of transformer. Right? जैसा कि आप phasor diagram में देख रहे हैं. If we get an output from inverter 1 V01 and from inverter 2 V02, then resultant output voltage will be phasor diagram के help से आप देख सकते हो, that should be V01 whole square plus V02 whole square plus 2 times V01 V02 cos theta, and that resultant will be in under root, right? Now, note करने वाली क्या बात है? First point, that is, it is essential that the output voltage V01 and V02 from both the inverter, that is frequency, should be same, right? The angle theta can be varied by the firing angle control of two inverter, right? So if we get an output, if theta angle is 0, then the resultant output voltage should be V01 plus V02. Now, second method, that is external control of DC input voltage. Okay, इसको समझने के लिए हम इसका फिगर देखेंगे यहाँ पे. Now, as you see in figure diagram, if we have a constant AC voltage, then इन तीनों मेथड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे. एंड इफ वी हैव अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, देन लास्ट फिगर, दैट इज फिगर नंबर डी, इसको हम यूज करेंगे. सो फिगर ए को यहाँ पे अगर हम समझें, इन दिस मेथड वी विल यूज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर and we get a controlled DC voltage which is the input to the inverter, and finally we get a controlled AC voltage, right? And in second method shown in figure B, we will use uncontrolled rectifier and chopper, and we will get a uncontrolled DC voltage from the uncontrolled rectifier and controlled DC voltage from the chopper, and finally we get a controlled AC voltage from the inverter, right? And similarly in third method, that is shown in figure C, we get a controlled AC voltage from the AC voltage controller and controlled DC voltage from the uncontrolled rectifier, and finally we get a controlled AC voltage from the inverter,
right? And fourth method, that is shown in figure D, if we have a constant DC voltage, then we will get a controlled DC voltage from the chopper, and finally we will get a controlled AC voltage from the inverter. One of the advantage of this method is output voltage waveform and its harmonic content are not much affected, as the inverter output voltage is controlled through the adjustment of DC input voltage to the inverter, right? And disadvantage की अगर यहाँ पे बात करें, so as you see figure, the number of power converter for the control of inverter varies from 2 to 3, so more power handling stages result in more losses and reduce efficiency of the entire system. Now, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, we are using in all four figures filter. So for reducing the ripple content of DC input voltage, we are using filter which increase the cost, weight and size, and overall efficiency will become reduced, right? Now, third and last method, which is very important, that is internal control of inverter, which is also called PWM technique, right? In this method, we get a output voltage, or we can say we get a control output voltage without any additional component. That is one of the advantage, right? And this is the most efficient method of doing voltage control in inverter. Now, we get a control output voltage by excising the control within the inverter itself. That is by adjusting the on and off period of the inverter devices, right? So one of the advantage, that is without any additional component, and second advantage, that is we get a lower order harmonics. So, or we can say we can eliminate lower order harmonics or minimize along with its output voltage control, ठीक है, right? So ऑब्वियस है हायर हार्मोनिक कंटेंट जो होगा वो हम लोग फिल्टर की हेल्प से रिड्यूस कर लेंगे, बट यहाँ पे लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PWM टेक्निक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज. नाउ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, दैट इज ऑन एंड ऑफ टाइम हमारा यहाँ पे लो हो रहा है, और वी कैन से यहाँ पे हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे ऑन एंड ऑफ टाइम हमारे कुछ टाइम के लिए हम रख रहे हैं और वी कैन से लो हो रहा है. दैट्स वाई हमारी स्विचिंग लॉसेस हमारा ज़्यादा होगा फॉर पर्टिकुलर इन्वर्टर डिवाइसेस. दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. नाउ सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पल्स विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर. If we are using PWM technique in inverter, then it is called pulse with modulated inverter. Now, different PWM technique we are using, that is single pulse modulation, multiple pulse modulation, sinusoidal pulse modulation, right? And also there are few more, that is space vector pulse width modulation, selective harmonic elimination technique and so on, which is not in your syllabus. फिलहाल यहाँ पे हम यही 3 मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? एंड ऑल्सो इन PWM इन्वर्टर फोर्स कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड इफ वी आर यूजिंग SCR, and if we are using transistor like MOSFET, IGBT and so on, then obvious है वहाँ पे हमको सेल्फ कम्यूटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? नाउ each technique, that is all these 3 technique, differ from each other in the harmonic content, ठीक है? Now first technique, that is single pulse modulation technique. So इसको हमको समझने के लिए यहाँ पे हम वेवफॉर्म के तरफ फोकस करेंगे. That is figure number 1, single pulse modulation. Now figure number A, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, that is a resultant output of edge bridge inverter. Edge bridge, that is already जो आप लोगों ने स्टडी किया, that is full bridge inverter, right? बिकॉज फुल ब्रिज इन्वर्टर में हम वहाँ पे 4 कंपोनेंट्स यूज़ करते थे, 1 2 3 4, एंड कुछ एच शेप में वो रहता था. दैट्स वाई इज ऑल्सो कॉल्ड एच ब्रिज इन्वर्टर, राइट? नाउ इफ यू आर यूजिंग PWM टेक्निक इन एच ब्रिज इन्वर्टर, देन आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो रिड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग द पल्स, राइट? सो यहाँ पे हम लोग ने पल्स विथ
जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया है दैट इज 2D, एंड 2D की वैल्यू जो वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 टू पाई। सिमिलरली फ्रॉम पाई टू पाई के लिए यहाँ अगेन 2D आपका वेरी कर रहा है, दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन करना है तो 2D शुड बी इक्वल टू पाई, एंड फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे मिनिमम आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करना है, सो ऑब्वियसली 2D की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2D वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, दैट इज 2D इज बिटवीन फ्रॉम 0 टू पाई। नाउ आउटपुट वोल्टेज एंड ऑल्सो इस वेव फॉर्म को हम यहाँ क्वाजी स्क्वायर वेव कहते हैं, राइट। एंड जो आपका फिगर नंबर बी में जो वेव फॉर्म दिख रहा है, इसका रिजल्टेंट आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए हमको यहाँ पे फोरियर एनालिसिस की तरफ फोकस करना होगा। सो वेव फॉर्म अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज योर, अगर इसको हम नेगेटिव हाफ में भी कंटिन्यू करें, राइट, और वी कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम कंटिन्यू करें ओमेगा टी, सो ऑब्वियस है ये आपका ऑड फंक्शन है। आई थिंक ऑड फंक्शन आप लोगों को पता होगा व्हाट इज एन ऑड फंक्शन। इफ द वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन then it is called an odd function. If the waveform is symmetrical about the y-axis then it is called the even function. और मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन वो आपका इवन होगा, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन वो आपका ऑड फंक्शन होगा। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो ऑब्वियस है वो आपका नाइदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। सो फिलहाल हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज योर ऑड फंक्शन। So in case of Fourier analysis, if function fx is an odd function, then a0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, an की वैल्यू that's also 0, and bn की वैल्यू that is 2 by pi, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे fx sin nx dx, right? एंड प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा है फॉर फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, जो कि हमारे वेवफॉर्म में भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। सो इसी इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे। सो वेवफॉर्म बी दैट इज क्वाजी स्क्वायर वेवफॉर्म का अगर यहाँ फोरियर एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम बी एन कॉन्स्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 2 बाई पाई। एंड आप देख सकते हो जैसा कि फिगर में हमको देखने को मिल रहा था, इंडिकेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ऑब्वियसली पाई बाई 2 माइनस डी, राइट, एंड पाई बाई 2 प्लस डी। सो इंडिकेट पाई बाई 2 माइनस डी, एंड हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो किसके बराबर, ऑब्वियस एक कांस्टेंट लाइन है जिसकी वैल्यू वी एस है, सो वी एस यहाँ पुट कर दिया, राइट, एंड वी एस साइन एन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन एन एक्स था तो ऑब्वियस एक्स एक्सिस में हमारा ओमेगा टी है, दैट्स वाई साइन एन ओमेगा टी, एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। देन फाइनली वी एस हम लोग ने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, साइन एन ओमेगा टी, दैट शुड बी द इंटीग्रेट अगर इसका हम करें माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन, एंड लिमिट शुड बी फ्रॉम पाई बाई 2 माइनस डी से लेके पाई बाई 2 प्लस डी। देन फाइनली हम लोग ने यहाँ पे लिमिट पुट करा, एंड फाइनली कॉस सी माइनस कॉस डी का आपको फॉर्मूला पता ही है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, एंड फाइनली वी गेट अ रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज शोन इन फिगर इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ अब इस इक्वेशन 1 को अगर हम बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड फाइनली जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज आएगा यूजिंग फोरियर एनालिसिस दैट शुड बी ए नॉट 0 ए एन 0। सो बी एन की वैल्यू बस निकल के आई, जिसकी वजह से हमारा जो इक्वेशन निकल के आया, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, एंड नाउ दिस वैल्यू इज बी एन की वैल्यू पुट करा एंड साइन एन ओमेगा टी। नाउ बट एन की वैल्यू जो आपकी इवन नंबर होगी 2 4 6 एंड सो ऑन, राइट, तो यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो इन दिस इक्वेशन साइन एन पाई बाई 2, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं सो 2 पाई बाई 2 दैट शुड बी द साइन पाई, यू नो दैट साइन पाई इज 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं दैट इज साइन 2 पाई अगेन 0, एंड सो ऑन। जितने भी यहाँ पे इवन नंबर पुट करेंगे हमारा जो वैल्यू होगा 0 होगा, दैट्स वाई जो समेशन हम लोग ने 1 टू इनफाइनाइट लिखना था, यहाँ पे हम लोग ने 1 3 5 एंड सो ऑन, यानी ऑड नंबर पे ही हमको ये सारे टर्म्स मिलेंगे। नाउ इस इक्वेशन नंबर 2 को अगेन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि आपका फाइनली इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे निकल के आ गया। एन की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करा सो ऑब्वियस है साइन पाई बाई 2 इज 1, तो फाइनली साइन डी साइन ओमेगा टी, व्हेन एन इज इक्वल टू 3 जब हम पुट कर रहे हैं साइन एन पाई बाई 2 दैट इज साइन 3 पाई बाई 2, एंड यू नो दैट साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, सो फाइनली आपका नेगेटिव आया। आफ्टर देन साइन 5 पाई बाई 2 देन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सो फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज आ गया, जो कि पहला टर्म जो आपके ब्रैकेट में है दैट इज योर फंडामेंटल कंपोनेंट,
4 Vs by pi से मल्टीप्लाई होने के बाद. Then second, that is harmonic component. All these are harmonic component, and जो lower order harmonics होगा इसको हमको with the help of PWM technique हमको यहाँ पे eliminate करना हो, and higher order harmonics आपका easily eliminate हो जाएगा with the help of filter. Right? Now, if we want to maximum output voltage, then obviously 2D की वैल्यू हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, that should be equal to pi. 2D is equal to, अगर हम यहाँ पे पाई पुट कर दें, सो ऑब्वियस हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट शुड बी द 4 Vs अपॉन पाई. आप सीधे तौर पे इक्वेशन नंबर 1 पे देख सकते हो. ठीक है, 2D की वैल्यू पाई यानी D की वैल्यू पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1. सो ऑब्वियस है जो फंडामेंटल इक्वेशन बनेगा 4 Vs अपॉन पाई इंटू साइन ओमेगा टी. इस फंडामेंटल इक्वेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट शुड बी द 4 Vs अपॉन पाई. नाउ एंड फॉर अदर देन 2 पाई रेडियंस की अगर हम बात करें, अगर 2D की वैल्यू पाई से हमारा कम हुआ, ऑब्वियसली 2D हम मैक्सिमम पाई तक वेरी कर सकते हैं. अगर पाई से कम हुआ, इन दैट केस जो फंडामेंटल कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट शुड बी द 4 Vs अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई साइन डी. और ये डी आपका कुछ भी हो सकता है फ्रॉम 0 से पाई बाई 2. पाई बाई 2 है दैट इज मैक्सिमम, एंड 0 है तो ऑब्वियस है वी गेट अ 0 वैल्यू. राइट नाउ इन दैट केस अब हम लोग को यहाँ पे हार्मोनिक कंटेंट्स को एलिमिनेट करना है. ठीक है, लेट अस टेक थर्ड हार्मोनिक कंटेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं. सो जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे हैं, इस टर्म्स को हमको एलिमिनेट करना हम चाह रहे हैं. ठीक है, हायर ऑर्डर तो हम लोग ईजिली फिल्टर आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर. सो इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑब्वियस है डी की वैल्यू इस तरीके से हमको यहाँ पुट करनी होगी. तो सो फाइनली ये आपका वैल्यू हो जाए 0. सो वी नो दैट अगर यहाँ पे डी की वैल्यू हम पाई बाई 3 पुट करते हैं दैट इज 60 डिग्री. सो 3 इंटू पाई बाई 3 दैट इज साइन पाई, एंड साइन पाई इज 0. सो अगर हम डी की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर रहे हैं यानी 2D की वैल्यू आपकी कितनी होगी, दैट शुड बी द 2 पाई बाई 3. यानी 2D का जो लेंथ हम रख रहे हैं दैट शुड बी द 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री. सो अगर हम ये लेंथ रखते हैं तो ऑब्वियस हमारा जो थर्ड हार्मोनिक कंटेंट है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट एंड हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स हमारे पास बचेंगे. राइट नाउ द पीक वैल्यू ऑफ द nth हार्मोनिक आप इक्वेशन 2 से आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. ये हमारा आएगा दैट शुड बी द V0n m is equal to 4 Vs upon n pi into sin nt. Now अगर हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की हेल्प से इस इक्वेशन 6 को अगर हम जनरेट करें दैट इज V0n m अपॉन V01 m इज इक्वल टू साइन एन डी अपॉन n. नाउ ये इक्वेशन 6 की यहाँ पे क्या हमको ज़रूरत पड़ रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम ईजिली यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम अपना आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हैं देन हमारा हार्मोनिक कंटेंट को रिड्यूस और वी कैन से एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेट अ मिनट, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डी इज इक्वल टू दैट इज 30 डिग्री. सो दिस इक्वेशंस पे अगर फोकस करिए, डी की वैल्यू 30 डिग्री यानी साइन 30 दैट इज 1/2. सो यहाँ पे हमको जो रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा फंडामेंटल कंपोनेंट का दैट शुड बी द 0.5 टाइम्स ऑफ 4 Vs अपॉन पाई. राइट, बट in case of peak value of nth harmonic 4 Vs upon pi multiply by sin nd upon n. Now d की वैल्यू अगेन यहाँ पे हम 30 डिग्री पुट कर रहे हैं एंड हम थर्ड हार्मोनिक के केस में देखते हैं यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ होगा. सो 3 इंटू 30 डिग्री अपॉन दैट इज 3, तो ऑब्वियसली 3 इंटू 30 दैट इज साइन 90. साइन 90 इज 1, सो 1/3 यानी 1/3 आपका वैल्यू हुआ एंड फंडामेंटल कंपोनेंट आपका 0.5 रिड्यूस हुआ. यानी जितना आपका फंडामेंटल कंपोनेंट रिड्यूस हुआ उतना आपका थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट रिड्यूस नहीं हुआ, दैट इज 1/3. वहाँ पे 1/2 रिड्यूस हो रहा है. यानी अगर डी की वैल्यू हम रिड्यूस करते चले जाएंगे देन फंडामेंटल कंपोनेंट तो हमारा रिड्यूस हो रहा है बट हार्मोनिक कंटेंट उतनी तेजी से आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है, और वी कैन से कुछ वैल्यू के बाद वो एक कंपेरेबल हो जाएगा. दैट्स वाई इसको एलिमिनेट करना, उसको फिल्टर आउट करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा. राइट, एंड RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना हो आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज दैट इज Vs. राइट, 2D तक हम यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा चल रहा था. ठीक है, ऑब्वियसली पाई के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 2D अपॉन पाई एंड फाइनली अंडर रूट, then this value is the RMS value of output voltage
for figure number 1p. Okay, now second modulation technique, that is pulse with modulation technique, मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.